Welcome back, students. I already explained some basic concept of what we learned in standard 7th. Now, in this video lecture of standard 8, lesson number 3, indices and cube root, I am going to solve our practice set 3.1. So, what is the question here? Express the following number in index form. Means हमें number को किस form में लिखना है? Index form we have to write. So, for writing the index form, we have to use we can use a radical sign also. Okay, so you know what do you mean by radical sign? Right, this way we call as a radical sign. Okay, but we have to use in the index form we have to write, right students? So index form कैसा होता है? Suppose a to the power अगर मैंने 1/n लिया, so जो ये 1/n है वो आपका index form होगा. ठीक है, इस टाइप में आपको लिखना है इसको. Suppose what is 5th root of 13, you can write this one. 5th root of 13 means you have to write this 13, and upstairs you have to write 5th root means 1/5. Okay, or you can write as 5th radical sign. By using radical sign also you can write 5th root of 13. Both the answer is correct only. Okay, you can write 6th root of 9, so you can write a 9 to the power 1/6, है ना. 6 है तो 1/6, this is the index form. Or you can write this one 6th root of 9. Have you understood? This is square root of 256, so you can write 256, okay, to the power 1/2, or you can write square root of 256 also. In any way if you are writing you will get the marks also. Cube root of 17, so how you will write 17 to the power 1/3, or you can write in radical sign cube root of 17. 8th root of 100 and power how much? 1/8, or you can write 8th root of 100. Okay, 7th root of 30, how you will write? You will write here 30 to the power 1/7, or you can write 7th radical sign and upon 30. Okay, when you are going to write the radical sign, if you are writing 5th root, तो ये radical sign के just above में आपका 5th होना चाहिए. ठीक है, इस तरह आप नहीं लिख सकते हो. Okay, just like this way you have to write. Okay students, if you observe question number 2, the first question number 1 is just opposite of question number 2, है ना, right? Because in the first question or question number 1, nth root of a, like that way questions is given to, and you have to convert in index form now. And in question number 2 में क्या दिया है? इंडेक्स फॉर्म में दिया है, और आपको nth root of a के फॉर्म में लिखना है, right? So how we will write? We have to look up firstly the power. Okay, power क्या है यहाँ पे? 4 है, तो what you have to write here? Power 4 है means what you have to write here? Spelling 4th. ओके, 4 है तो क्या लिखोगे? 4th. yes, 4th रूट ऑफ व्हाट? 81, राइट स्टूडेंट. अब यहाँ पे 2 है तो हम क्या लिखोगे? 2th लिखिए क्या? नो, आई टोल्ड यू ना, जब भी 2 या 3 आता है तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? स्क्वायर, और 3 के लिए व्हाट वर्ड यू हैव टू यूज़? क्यूब. सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? स्क्वायर रूट ऑफ 49, full stop. Okay, here 5 है, so what you have to use? 5th root of what? 15. Here 9th. Okay, 9th root, don't write here e. Okay, ninth, 9th root of 512. Okay, here 19th means ninenth, here e will come. 19th root of 100. Okay, and the last question is what? Yes, 7th root of 6. Have you understood? Okay, so students, now we will see the next this question, part 2, that is what the meaning of number having index in the rational form m by n. So if you see the first part में हमने क्या पढ़ा था? जो इंडेक्स रहेगा इन द रैशनल फॉर्म में रहेगा, बट वो कौन से फॉर्म में था? 1/n के फॉर्म में था,
ठीक है। बट इन दिस केस इन द सेकंड पार्ट वी विल सी द रैशनल फॉर्म जो रहेगा, मतलब जो इंडेक्स का जो रैशनल फॉर्म रहेगा वो कौन से फॉर्म में होगा, m/n। मीन्स यहाँ पे आपका सिर्फ डिनोमिनेटर्स में नंबर थे, एंड इन दिस केस वी विल गेट द बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर नंबर। ओके, जस्ट लाइक सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, यू नो लॉ ऑफ इंडाइसिस का a⁻m टू द पावर n, इसको कैसे लिख सकते थे हम, a⁻m into n, like this way we can write, or we can write a⁻m into n, or we can write a⁻n को सामने लिख देते हैं m, like this way we can write। Have you understood student? Now what if I'm taking instead of a, if I'm taking any number, suppose अगर मैंने आपको नंबर ले लिया, सपोज 21 ले लिया, ओके, टू द पावर, सपोज आई एम राइटिंग 21 और टू द पावर 2 टू द पावर हाफ, ठीक है, यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। सो इसमें क्या होगा आप देखो, अब ये 21 का पावर 3 है, उसका पावर क्या है 1/2 है, और आई कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो 21। अब मैं क्या कर रही हूँ, हाफ को अंदर ले रही हूँ और 3 को बाहर डाल रही हूँ, 1/3 2, मीन्स दोनों केस में मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, सेम होगा। बट हियर व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दैट नंबर, ओके, सो इसको जो बोलोगे, जब सिर्फ हमें नंबर मतलब सिर्फ एक सिंगल नंबर पावर में मिलेगा, तो इसको कहेंगे हम पावर ऑफ द रूट। क्या कहेंगे, पावर ऑफ द रूट। और जब रूट जो है बाहर रहेगा तो इसको कहेंगे हम रूट ऑफ द पावर। हैव यू अंडरस्टूड? Okay, let us take one example, then you can understand. Suppose I am taking one example. Suppose I am taking one example just like 8 to the power, suppose I am writing 2/3, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। तो अगर मैंने इसको अगर कन्वर्ट किया जस्ट लाइक इसमें 8 1/3 और 2, ठीक है, देन इन दिस केस हाउ यू विल रीड, इसको रीड कैसे करोगे, सिर्फ मैंने क्या बोला था, अगर सिंगल एक नंबर रहा, सिंगल डिजिट, मतलब जो डिनोमिनेटर रैशनल मतलब जो कि रैशनल फॉर्म में ना हो, जैसे कि सिंगल मतलब p/q के फॉर्म में ना, p/q का फॉर्म जो अंदर है, तो जो p/q के फॉर्म में रहेगा उसको स्टार्टिंग, उसको क्या कहते हैं, रूट ऑफ द पावर। बट यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिया है तो इसको बोलोगे पावर ऑफ द रूट। क्या बोलोगे, पावर ऑफ द रूट, मतलब ये जो है रूट का पावर है, पावर ऑफ द रूट, रूट का पावर है। तो ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे, जब आपको लिखना होगा इस टाइप के नंबर, तो हम क्या है, ये 2 है, 2 को हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, राइट, स्क्वायर ऑफ, ये क्या है 1/3 है, ओके, क्या है यहाँ पे 1/3, तो हम 1/3 को कैसे करेंगे, क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, अगर सिर्फ ऐसा ही पावर होता था तो हम इसको कैसे लिखते थे, क्यूब रूट ऑफ 8 लिखते थे, क्यूब रूट ऑफ 8, बस ऐसे ही लिखना। बट एक ऐड क्या हुआ है, ये पावर ऐड किया है, स्क्वायर पे ऐड हुआ है, ठीक है। अगर सपोज इसको कहेंगे पावर ऑफ द रूट, ठीक है। अब हम उल्टा करना है, रूट ऑफ द पावर, तो मैंने क्या किया, यही नंबर को अब मैं 2 को अंदर डालती हूँ और 1/3 होगा, तो ये अब क्या होगा, रूट ऑफ द पावर हो गया, है ना, क्योंकि ये फॉर्म क्या होता था, रूट ऑफ द पावर, अंडरस्टूड। तो ये क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 2 मीन्स स्क्वायर of what, 8. Have you understood? So let us go through some examples now. So let us see practice set 3.2, complete the following table। अब मैंने जैसे बताया था पावर और रूट, अब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट, पावर मीन्स सिंगल नंबर होगा और रूट मीन्स जो 1 अपॉन के फॉर्म में होगा,
हैव यू अंडरस्टूड। जस्ट लाइक मैंने सपोज अगर 2 के पावर में अगर मैंने 3/6 लिख दिया, तो ये जो 3 है ये पावर कहलाएगा, और ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये आपका रूट कहलाएगा। ओके, तो पावर से स्टार्ट, मतलब पावर पूछा रहा, पावर ऑफ द रूट पूछा रहा, तो पावर से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे पावर क्या है बेटा, यहाँ पे 3 है। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था अगर 3 या तो 2 रहेगा, सो आपको क्या देखना है, 3 मीन्स क्यूब एंड 2 मीन्स स्क्वायर। तो पावर यहाँ पे क्या है, अभी 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। ओवर, हैव अंडरस्टूड। क्या कैसे लिखा मैंने, हमें क्या देखना है यहाँ पे बेटा, पावर, यहाँ पे रूट ही नहीं देखना है, हमें पावर, ये पावर देखना है। पावर मीन्स पावर क्या है यहाँ पे 3, तो क्या लिखोगे, क्यूब। ठीक है, क्यूब लिख लिया। ऑफ, किसका क्यूब, ऑफ, ठीक है। रूट, रूट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 है, 1/2 है, तो 1/2 को भी हमने कैसे लिखा था, जैसे कि अगर मैंने सपोज 225 1/2, तो इन द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सॉल्व करके दिखाया था। इसको कैसे पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो सेम वी यू कैन राइट, और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक पावर बढ़ रहा है आपका, यहाँ पे सिर्फ एक पावर बढ़ रहा है, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 225, दैट्स ऑल। हैव यू अंडरस्टूड। अब इसमें रूट देखना है, तो रूट यानी नीचे का डिनोमिनेटर वाला, सो 1/2 है, तो जस्ट उल्टा करो, तो क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, क्यूब। पावर क्या है यहाँ पे, क्यूब ऑफ व्हाट नंबर, 225। हैव यू अंडरस्टूड। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अब यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, तो हमें पावर लिखना है, तो पावर 4 है, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, हम 4th पावर, ठीक है, या तो स्पेलिंग भी लिख सकते हो आप। 4th पावर ऑफ 5 है, तो 5 मीन्स क्या आएगा, 5th रूट ऑफ क्या, 45। और इसका उल्टा, तो ये 1/5 है, तो 5th से स्टार्ट करो, तो क्या आएगा, 5th रूट ऑफ व्हाट, 4th पावर ऑफ 45। हैव यू अंडरस्टूड। अब सेम वे 6/7 है, तो यहाँ पे पावर पूछा है, तो 6 मीन्स सिक्स्थ पावर, यहाँ पे पावर वर्ड यूज़ होगा फर्स्ट, बिकॉज पावर पूछा है, रूट है तो रूट वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। 6th पावर ऑफ 1/7 मीन्स 7th, ठीक है, 1/7 मीन्स 7th रूट ऑफ 81। इसका अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, 7th रूट ऑफ 6th power of 81. Like this way, remaining 3 question I am just leaving for you, just do it, practice at home. Okay, in the next lecture video I am going to explain another topic. Thank you.